Hello everyone, welcome to my channel, and I hope that the content posted on my channel will definitely help you in preparing civil service exam and build your confidence in attempting the exam. Firstly, I would like to start with the last year's prelims question paper, and we'll see how things can be done in a logical way and mostly without panicking, and how people are trapped in the exam. See, because what I feel is prelims is the most tricky exam out of the three. People generally, um, all the civil service aspirants are most troubled by prelims, not by mains nor by interview. See, there are three phases of the exam: prelims, mains, and interview. But I tell you, if you are clearing prelims with full confidence, you will clear the exam. Because see, there is nothing like there is a separate preparation for prelims, there is a separate preparation for mains. ऐसा नहीं होता है. Prelims is the crux of the exam, okay, and prelims is the most cruel part of the exam. By this time everybody might have known, at least अगर आप एक दो साल से अगर इसमें है, if you are in the ring, you know how hardly UPSC hits you, right? So the most difficult part of the exam is prelims. And if you are clearing prelims with डैम श्योर, मतलब आप रिजल्ट तक वेट नहीं करेंगे, सो आई थिंक 50% ऑफ द गेम इज ओवर, एंड रिमेनिंग 50 it comes in mains, and mains is completely about your answer writing, and थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए मेंस में. बट प्रीलिम्स requires a lot of skills, okay. Prelims is not just about discipline, not just about knowledge. You have to have a lot of understanding of the subjects, you have to have a lot of logical reasoning. ऐसा नहीं है कि आप जनरल स्टडीज इतने पेपर्स पढ़ लिए बट सारे चीज़ याद नहीं रहता है, ठीक है. यू रीड लॉट ऑफ हिस्ट्री, यू रीड लॉट ऑफ पॉलिटी, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, एनसीईआरटीज पढ़ लिया, बट फिर भी प्रीलिम्स विल बी अ नाइटमेयर टू मेनी पीपल. सालों से पढ़ते हैं लोग, बट प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते. The main reason is it's not about the like toughness of the exam, or it's not about the competition. Competition तो हर साल होता है. It's not like सालों से है, but you know the right approach, how you proceed in the exam hall matters. How you attempt the paper matters. How you think in the exam hall, that matters, okay. जो भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं एक साल, मान लीजिए एक साल से जो पढ़ रहा है, लोग तो कई सालों से भी पढ़ रहा है, बट ऑन एन एवरेज अगर एक साल आपने पढ़ाई किया है, तो यू कैन एंड यू शुड क्रैक दिस प्रीलिम्स, एटलीस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. एंड हाउ इट कैन बी डन, this is an attempt of explaining you. We'll see, there is long way to go, okay. Just don't panic, and we'll see how this 2019 paper can be solved in a logical way. What questions can be exempted, what questions should be attempted, and what questions should be kept in a review, okay. Prelims is nothing but your emotional exam. It tests lot of your emotions, okay. ऐसा नहीं है कि हर पेपर डजंट कंटेन सारे इजी क्वेश्चंस एक तरफ दे दिया, सारे टफ क्वेश्चंस एक तरफ दे दिया, ऐसा नहीं होता है. इट टेस्ट योर इमोशंस. एक टफ क्वेश्चन दे दिया तो फिर आप हिल जाएंगे, कभी सुना ही नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन. उसके बाद एग्जैक्टली दे विल गिव यू एन इजी क्वेश्चन. द पॉइंट इज दैट इवन दैट इजी क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट रॉन्ग. we'll see how things can be done. For example, we have took this paper as an example, 2019 paper, and hope we'll see how things can be done in this, okay. Let's start. With reference to Mughal India, what are the difference between Jagirdar and Jamindar? Okay. Generally, in the heat of the exam, we
This is the first question, and first question itself is a bouncer. I would say this is not a straight question, and everyone knows about Jamindar, but Jagirdar is little bit doubt. अब ये little bit doubt को थोड़ा पहले अटक नहीं करना चाहिए. Okay? This has to be dealt in a later part. Okay? क्यों? I'll tell you later. But in the first instance, if you still want to attempt this, just see the second statement. Land assignments to Jagirdars were hereditary and revenue rights of Jamindars were not hereditary. This is absolutely wrong statement. Okay. So at least you have derived between 1 and both 1. Sorry. At least 1 and none. Okay. These questions are 50-50 questions, and there is a calculated risk in these questions, and you can do it in the end because you have to pick the easy questions first. Okay. First is not an easy question. Okay. Second देखते हैं. जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप चलते रहो बस. Don't get panic. With reference to land reforms in independent India, which one of the following statements is correct? Now, just this question, I would say this is an easy question if you have read newspapers, if your preparation is proper, and don't panic just by seeing the options or बहुत कुछ देते हैं options, right? But your common sense should always speak. It resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Absolutely wrong. Cash crops की बात कहाँ होता है? Land reforms में this is absolutely redundant option. We have to remove this immediately. Land reforms permitted no exemptions to the ceiling limits. ऐसा हो सकता है. Just think these two are redundant options. You have to remove this immediately. Now, these two options you have to select, and here it is talking about family holdings, and here it is talking about it's providing agricultural land to landless. This is more of a socialistic term of land reforms, so you can take this very easily. There is no doubt in it. Okay. Doubt वाला aspect नहीं आता है इस question. Now, global competitiveness report. It is a pure factual question, and if you have read it as a serious aspirant, I will say this question should be attempted in a proper way, and you have to prepare mnemonics for this. These things should not be missed in exam. These are the very easy questions. You have to straight away world economic forum. Otherwise also logically अगर सोचेंगे तो UN conference is a redundant option. Okay, ये हो ही नहीं सकता. IMF is a redundant option. ज़्यादातर लोगों को confusion ये दोनों में होता है. But your preparation should be thorough in these reports. ये दोनों में, even if it is a 50-50, you can take a risk at the end. But this is a common question. Global competitiveness report is a very famous, it's a common thing. So option is C. Charter Act of 1813. Now, we'll see about this. It ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. This is absolutely correct. And this is a basic history material. Any history material you pick, this statement is there. And Charter Act of 1813 हर material में available है, even in Spectrum, NCERT, हर जगह. Okay, this is not a controversial thing. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. Now this is not that easy statement. Okay, just don't go just like that. The revenues of India were now controlled by the British Parliament. Now this is the key. The British Parliament. British Parliament का सिनेमा तो अभी आया नहीं. He is talking about 1813. British Parliament entered in 1857. So you can eliminate this right away. So if you eliminate this, the option left is 1 and 2. You can straight away tick this. Okay. And now Swadeshi movement.
it contributed to the revival of indigenous artisan crafts and industries. You know this. Okay, this is there in spectrum and everywhere. स्वदेशी मूवमेंट इसीलिए तो आया था. ओके, इंडिजिनस को एनकरेज किया था, इंडिजिनस क्राफ्ट्स को एनकरेज किया था, इंडस्ट्री सेटअप किया था. ओके, मेनी थिंग्स हैपेंड. स्वदेशी, स्वदेशी मतलब इंडिजिनस, नाम नहीं है. ओके, देयर इज नथिंग टू थिंक मच अबाउट इट. बट दिस इज अ ट्रिकी वन. अब ये जनरली अवेलेबल नहीं होता है. दिस कैन बी ए 50-50 क्वेश्चन. ओके, आइदर इट शुड बी वन, ओके, और इट शुड बी बोथ. यही हो सकता है. अगर 2 गलत हो गया तो फिर दिस इज यू कैन कीप इट फॉर लास्ट मिनट. ओके, नाउ एंड ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी. ऑल इंडिया किसान सभा, दिस इज नॉट a traditional one. Okay, self-respect movement, this is a very routine. E. Ramaswamy Iyengar, it's a routine aspect, routine fact of history. So 3 should be there. It has to be between C and D. I will keep this for the last minutes. Okay, because I'm not sure about this. This is a little bit dangerous. Okay, because we are not sure. जो भी क्वेश्चंस आते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर और B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर, it's not that easy. You should know those things, otherwise it can turn against you. This is belonging to untouchability league. So these both personalities, there is always confusion between Gandhi ji and Ambedkar. Okay? So that's why you can keep this for 50-50. C and D में हो सकता है. अब ये भी ऐसा ही है, which is not a Harappan site. Chenjudaro, if you have read Kurtiji, these two are Harappan sites. Okay. Now the question arises, ये तो कभी सुना ही नहीं होगा. Sogaura, Desalpo, these are not traditional questions. But चलो फिर भी we eliminated 2 options. We can keep this. Okay. Now Ranyo Ashoka, this question, I would say this should be left. This is a question to leave. Ranyo Ashoka, you should not attempt every question. That's the key in prelims. This is a question given a perfect trap. आप ये देखो, रन्यो अशोका के बारे में जनरली कोई बुक्स में अवेलेबल नहीं होता. एंड द ऑप्शंस आल्सो, ये कभी सुना है किसी ने? शाहबाज गर्गी, सोगावा, ये ऑप्शंस जनरली सुनता नहीं है. कंगन हल्ली थोड़ा बहुत सुना होगा, सांची को थोड़ा बहुत सुना होगा. बट यू नो, दिस इज अ हाई रिस्क क्वेश्चन. You should never attempt this in the exam. Forget about this at this point of time. Now this is an easy question. Deification of Buddha, treading the path of Bodhisattvas, image worship and rituals. He is talking about Mahayana Buddhism. All these things belong to Mahayana Buddhism. This is a very basic Buddhism question. Every year there is a question on Buddhism and Jainism. You have to attempt. You should read these things in a proper way. And I don't think this is a tough question. This is a very easy question. Deification of Buddha, मतलब बुद्धा जी को, गौतम बुद्धा को इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप किया था. बोधिसत्वास का कहानी आया था. So this is not a tough question, I would say. Okay. Now just look at this. Forced labor, vishti. You know, these terms, unless and until you are sure, only then you can attempt this. And generally I would say this, such questions do not attempt in the exam, because exam ke heat mein, you know, this will become a negative marking. This will definitely turn into a negative marking. Don't attempt. Further, building Kalyana Mandapas was a notable feature. Now this is not a completely tough question. I would say Kalyana Mandapas refer to marriage halls. It's similar to the marriage mandapa. Okay, Kalyana means marriage. So this is a South Indian term, but the problem is options given
are belonging to South India. Chalukya belong to South India, Rashtrakuta, Vijayanagar. Chandela is more of a Central India, so you can eliminate this. Okay, but in these things you can have an intelligent guess at the ending. Okay, how to do intelligent guess is, okay, right away you are picking easy questions. Now, in the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection, and see, these terms are a little bit irritating. Okay. These are the questions to leave. You will never be successful in these questions, I tell you, because it's not an easy question. Amil, Ikta system, sultans. Okay, Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. These are all, you have to be a superstar in this if you want to answer it perfectly, but otherwise 90% you will mark it wrong. Leave it on the problem. This is an intelligent guess you can derive. Okay, you can commit at the end of the day. You can because Saint Kabir के बारे में तो you forget about culture, you forget about history books. Saint Kabir Das was a highly influential saint of Ram Bhakti. Okay, he was influenced by Ramanand, not by Sheikh Ahmad Sarhindi. Okay, this is absolutely wrong. Saint Nimbarka was, if you have read Bhakti movement, Nimbarka is a very famous proponent. Okay, contemporary of अकबर बता रहे हैं, इसमें थोड़ा वाइल्ड गेस लास्ट में लगाना है. दिस इज नॉट इजी. ओके, भक्ति मूवमेंट का टाइम का क्वेश्चन है. भक्ति मूवमेंट यू हैव टू रिलेट इट. इट्स नॉट अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन. ओके, we'll see about it. Now, British colonial rule in India. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of the system of endangered labor. This is a general statement. Gandhi was always instrumental in this. He always supported laborers. Okay. Now this is a different question. Lord Chelmsford War Conference. और ये War Conference के बारे में भैया कोई इतना आसान से पढ़ता नहीं है. This is either 50-50 or it can go, or you can eliminate this question. It depends upon your choice. Okay. Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the INC. This is a general question. British had many opportunities to declare INC as illegal, and breaking of the salt law is also one of the. So it can be between these two. So it can be about first 1 and 3 and 1 and 3. So it has to be between B and D. So this is a 50-50 calculated risk को लेना पड़ेगा. But this I would say it's a tough question. This is a tough question. It's not easy. तेज बहादुर सप्रू के बारे में कोई सुना होगा. केसी नियोगी not a routine name. PC Joshi is not a routine name. हिस्ट्री से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. बेटर टू लीव. हिस्ट्री इज नॉट दैट इजी. बस आपको लगता है कि स्पेक्ट्रम पढ़ के सब कुछ मुट्ठी में है, ऐसा नहीं होता है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है. you will never in the exam hall it will be like Yorker, right? So you can leave this question at this point of time. अब 15 क्वेश्चन हो गया तो you should not be afraid. Many of the questions either we have marked in red or in violet. कोई बात नहीं, मतलब ये तो शुरुआत है. ओके, ये शुरुआत में ऐसे ही टफ क्वेश्चन ही डालते हैं. That will basically down your morale. That is also there. Okay, every set, any set you say first 10 questions में बहुत कम ही questions आप आंसर कर पाएंगे. Easy questions will come in the later. So the main motive is to reduce your confidence levels after then attack. UPSC attacks you like that. Okay, just be cool, just stay calm, just see आगे अच्छे आएगा, अच्छे दिन आगे है. उस टाइप का सोच के
आगे बढ़ते हैं. Nian Tansen. This is also a tough question, I would say. चलो, everything is tough. Don't cry at this point of time. होता है, ऐसे होता है exam paper. Okay, see, this is an easy question. Now this you have to identify. This is where your common sense works. Following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait. So talking about paintings. Paintings में everyone knows Jahangir is very much fond of painting. हुमायूं के बारे में तो कोई पढ़ता नहीं है. हुमायूं right away eliminated. Akbar more or less he is an administrative person. Okay. So and Shah Jahan is an architecture related person. So paintings के बारे में this is straight very easy question. आपने अगर पढ़ा इतना explanation नहीं चाहिए इसके लिए. Jahangir is a straight away answer. Now this is a little bit theoretical question, but I would say 50-50 में आ जाएगा ये, because मानस असम में है, this cannot be, नामदाफ अरुणाचल में है, this cannot be, it can be between C और D. आपको अगर थोड़ा बहुत confusion है इसमें हो सकता है, this will come later. Now Atal Innovation Mission, this is an easy question. आपने अगर तैयारी किया है, this is there in most of the papers. Newspaper, there is no excuse for you. मतलब इसको आपने पढ़ा नहीं है तो फिर there is no excuse. Okay, आपने पढ़ा ही होगा 100%. This is नीति आयोग. Okay, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का तो हो ही नहीं सकता. लॉजिकली अगर जाएंगे तो either there is an option between A and C. स्किल डेवलपमेंट का भी नहीं है. ओके, देयर इज अ लॉजिकल ऑप्शन बिटवीन ए एंड डी. इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट्स नीति आयोग. इट्स अ वेरी सिंपल करंट अफेयर्स क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज आल्सो बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन. यू शुड नॉट, ऐसे क्वेश्चंस को यू शुड नॉट लीव इट. ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. ऑन 21st June the sun is exactly overhead of the tropic of Cancer. ओके, इक्वेटर तो हो ही नहीं सकता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो ही नहीं सकता. अब ये आपको सेट बिलो द हॉरिजन एट आर्कटिक सर्किट, अंटार्कटिक सर्किट, यू शुड नो. मतलब एटलीस्ट डेट्स तो पता होना चाहिए कि इक्विनॉक्स और ये डेट्स तो होना चाहिए आपके हाथ में. यू शुड मतलब सॉलिडली आपके दिमाग में होना चाहिए. सो दिस कैन नॉट बी. दिस इज स्ट्रेट एनसीईआरटी क्वेश्चन. देयर इज नो नथिंग इन दिस. Now again this, see ये new word old word, अगर आपने NCERT बहुत ही strongly पढ़ा हो, but this is a very difficult question. Better leave it. Okay. Now this is an easy question. This is a very easy question. Just see third statement. One-horned rhinoceros naturally found in India only. भाई राइनो पॉपुलेशन तो हर जगह पे है, बहुत सारे जगह पे है. इंडिया अकेले में नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जगह पे है. ओके, डबल हम्प्ड कैमल असल इंडिया में तो मिलता ही नहीं है. डबल हम्प्ड कैमल के बारे में, दिस इज नॉट एट ऑल फाउंड इन इंडिया. एंड यू कैन हैव ए लॉजिकल दिस थिंग आल्सो. हमारे पास नॉर्मल कैमल मिलता है. एंड एशियाटिक लायन, यू नो, नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली बिकॉज एशियाटिक लायन के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है करंट अफेयर्स में, इसमें उसमें. दिस इज ए इजी क्वेश्चन, आई वुड से, राइट. पंदारपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी. यू नो पंदारपुर कोई सुनता नहीं है. ओके, डोंट नो. तिरुचिरापल्ली सुनते हैं, कावेरी पे है. इफ यू हैव डन योर मैपिंग, दिस इज अ रेगुलर पेस. हम्पी इज ऑल्सो अ वेरी रेगुलर प्लेस. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखा है तो देर इज अ मेंशन ऑफ तुंगभद्रा रिवर, हम्पी, सो मेनी थिंग्स. दिस इज अ प्योर मैपिंग क्वेश्चन. थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है. हम्पी इज ऑन तुंगभद्रा, नॉट ऑन मलप्रभा. ओके, सो 3 इज एलिमिनेटेड. A is the answer. Okay, this is an, I would say this is an easy question. It's not difficult. In a given year in India, official poverty lines are high. Now this is a little bit thinking, thought process question, because it relates to economy and it relates
it's talking about official poverty lines. You have to think about these things, okay? Official poverty lines are higher in some states than in others because poverty rates vary from state to state. भाई ये तो वही बात दोबारा बता रहा है, ये नहीं हो सकता है. Gross state product price levels vary from state to state. In the face of it, you won't understand this. Gross state product varies from state to state. तो क्या होगा? State product vary हो गए तो poverty lines change होता है. Quality of public distribution के बारे में नहीं होता है. So this is a question to think. Okay, price levels vary from state to state. Economy basics आपने पढ़ा है तो this is the answer. Now, ये I would say this is not a straight question. Cirrus cloud thinning technique, this is current affairs question. I would say. अगर आपने पढ़ा है, so you would be confused between A and D. Reducing the frequency and intensity of tropical cyclones, this is absolutely redundant. क्या ये ऑप्शन कभी हो सकता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन इतना बड़ा, दिस इज अ फूलिश ऑप्शन. जस्ट थिंक अबाउट इट. मतलब कोई टेक्नोलॉजी आया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कम करे? अगर इतना हो सकता है तो इतने साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में, दे वुड हैव यूज्ड दैट टेक्नोलॉजी बाय दिस टाइम. सो जस्ट दिस इज अ कॉमन सेंस. Reducing the adverse effects of solar wind on Earth, this is absolutely wrong. Solar wind on Earth is a very huge phenomenon. ऐसे huge phenomenon को टेक्नोलॉजी आया है, आ सकता है वो अलग बात है, बट आ सकता है. जस्ट थिंक, सोलर विंड से जो एडवर्स इफेक्ट्स आता है, दैट्स a very big phenomenon. So these two can't be options. And creating artificial lights, ये हो सकता है. It relates to cirrus cloud. Artificial line का क्वेश्चन आया भी था previous questions में. So this can be in these two. Okay, we have kept it for 50. Plasma pyrolysis. Pyrolysis is a common term. Environment books में आपने पढ़ा होगा. Plasma gasification. It's a complete straight question. It's easy, I would say. Easy question. Waste to energy. Right? Now, Agastha Malay. Yeah. See, this is a very, very, I would say, tricky question because see, it's Agasthamala. आपने अगर पढ़ा है तो अगस्तमाला कुछ तो नाम ऐसे लगता है कि केरला या तमिलनाडु का है. ठीक है. So many times we come across such biosphere reserves or national park or wildlife sanctuary, but we are unable to mark that properly. But still, how would we conclude it? Just see the options. इसमें नैयार, पेपरा, शेंदुर्नी, ये सब मधुमलाई, सत्यमंगलम, you will come to it. वेयनाड अभी तो दिमाग में कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा. ठीक है. कौंडिन्य, गुंडला, ब्रह्मेश्वरम, पापिकोंडा. See, this is a logically you would say Papikonda is a Telugu name. Okay. Mukurti. These are not related to Kerala. This is a if you ask any South Indian, they'll say Papikonda is a pure Telugu name. This is never belongs to Kerala or Tamil Nadu. So this cannot be an option. Okay. Some logical guess. Kaval and Sri Venkateshwara Nagarjuna Sagar. Nagarjuna Sagar is a famous project here. This belongs to Telugu states, not belonging to Kerala. Now you are stuck with these two. We'll come to it later. Now this is an easy question which you have to attempt and should not leave it. But एग्जाम में ऐसे होता है कि भाई जब अगर ओवर थिंकिंग आप करेंगे तो ये भी उड़ जाएगा आपसे. तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है. सीधी सी बात है. सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर herbivores, some species of fish are herbivores, some species of marine mammals are herbivores, some species of snakes are. अब ये सम स्पीशीज की जब बात कर रहा है, सम का मतलब लॉजिकल रीजनिंग में भी आप देखेंगे, सम मतलब आइदर इट कैन बी वन और मेनी. इवन अगर एक भी स्पीशीज आ गया है तो that comes under the definition of sum. So
Some species of fish are herbivorous. Just imagine यार, fish का kingdom कितने millions of fish are there. उसमें herbivorous तो हो ही सकता है. हाँ, some species of turtles में कितने species है? Can you? This is a general logical question. This is nowhere related to your general studies. Okay, this is not a general studies question. Just remember that. Now again, this is also a logical question. Irrawaddy dolphin. You have to identify this. चंबल में कैसे पाए जाएगा? हाँ? So you can eliminate this straight away. Easy question. Okay. Why is there a great concern about the microbeads that are released into the environment? This is a current affairs question, and many of them have attempted this properly. I would say this is there in the newspapers. And अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर वो अलग बात है. But microbeads are they were talking about marine ecosystems. Marine ecosystems के बारे में बहुत बार ये न्यूज़ आर्टिकल आया था. So this is, I would say, easy, but this one question, you can keep it if you are not sure. Now, ये हमेशा यूपीएससी ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आता है, कोई गवर्नमेंट सोर्स है, क्या है. हिमालयन लिटिल, बिकॉज इट इज फाउंड इन सस्टेनेबल सोर्स ऑफ. ये मैंने वायलेट डाला था, वायलेट नहीं है तो रेड है. Don't attempt such questions. Leave it. It's not good. Now this, you have to take a calculated risk. आप देख रहे हैं ना पैटर्न. आप देखिए कि एक टफ क्वेश्चन आता है, उसके बाद एक इजी क्वेश्चन आता है, एक मॉडरेट क्वेश्चन मिक्स करके देता है. ऐसे यूपीएससी इतना बेवकूफ नहीं है कि सारे इजी क्वेश्चंस एक जगह पे दे दिया, सारे टफ क्वेश्चंस एक जगह पे दे दिया, सारे मॉडरेट क्वेश्चंस ऐसे. They just want to test your emotions. Because limbs is basically testing your emotions only. ये facts तो आपको पता ही है. You know, every UPSC aspirant put their valuable time and nobody studies CSAT. पेपर तो कोई पढ़ता नहीं है, पेपर 1 ही पढ़ते रहते हैं सालों से. But you know, this is how you have to think in the exam. अब ये क्वेश्चन आया किसके बाद? सिर्फ इसी के बाद. अब ये क्वेश्चन देख के तो माइंड ब्लॉक हो जाता है, थोड़ा हिल जाएंगे आपको, यार ये कभी सुना ही नहीं है. हिमालयन लिटिल कहाँ से आया ये? अब ये साइंटिफिक नाम तो और भी अजीब गरीब है. गिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया, क्या है? कोई गाली दे सर है लग रहा है. तो you know, these things will hit you like a storm. Just you have to ignore these things. Ignoring is very vital in your life also. You have to ignore some bullshit. Okay? Now, this is a very simple question. अगर आपने previous year questions solve किया है, so I would say satellite image, remote sensing data, it is used for chlorophyll content to detect specific location, greenhouse gas emission, plant surface. Straight away question this is 1, 2. Okay, this is also an easy question. Okay, ये क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट. किस ऑर्डर में पूछा है? असेंडिंग ऑर्डर. करो असेंडिंग ऑर्डर. सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश का होता है, उसके बाद महाराष्ट्र का होता है, उसके बाद उड़ीसा का होता है, लास्ट छत्तीसगढ़ इज अ वेरी स्मॉल स्टेट. ओके, तो फॉरेस्ट कवर तो आपको पता ही है. So you can arrange this in a proper way. 2, 3, 4, 1. That's it. 2, 3, 4, 1 is an option. Right. Now, मीथेन हाइड्रेट के बारे में NCERTs में भी दे रखा है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर NCERTs में. और एनी करंट अफेयर्स और एनी एनवायरमेंट मटेरियल आपने देखा है तो मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में इट्स रिलेटेड, it's there. एग्जाम से पहले आपने पढ़ा है. Just that you don't have the confidence to attempt this question, but this is an easy question because see,
ग्लोबल वार्मिंग में ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स? डेफिनेटली यार, वो तो होता ही है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर मीथेन हाइड्रेट से तो गैस रिलीज होता ही है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक सी फ्लोर, सी फ्लोर में तो पाया जाता है। ठीक, इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और टू, दिस इज आल्सो देयर इन योर मटेरियल। आपने अगर सही से पढ़ा एनवायरमेंट टॉपिक्स, यू हैव टू रीड इट थरोली। जैसे ये वाला मीथेन के बारे में, बायोडीजल्स के बारे में, you should not miss these things. Okay. Now, which of the following are released into atmosphere due to burning of crop or biomass residue? This is an easy question, but if you overthink this, आपका दिमाग बहुत लंबा चलता है। आपको लगता है कि ओजोन कैसे हुआ, आपको लग सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हुआ, मगर होता है वही। आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है तो ये सब दे रखा है एनसीईआरटीज में। आप एनसीईआरटीज इसीलिए एनसीईआरटीज बोलते हैं। these questions are from NCERTs only. Only thing you don't identify them properly. ये सारे रिलीज होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सारे होते हैं। बर्निंग ऑफ बायोमास, मीथेन तो आता ही है, सबको पता है, सल्फर आता है, सबको पता है। अब ये ओजोन के बारे में जनरली पीपल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, दिस इज नॉट ए टफ ऑप्शन। ओके, अगर ऐसे भी देखेंगे 1 to 4 किस में, 1 to 4 तो इसी में। ओजोन के बारे में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओजोन तो आ ही नहीं सकता, ओजोन कैसे आ जाएगा, ओजोन तो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, ओजोन क्या आता है। ओके, बट ओके, ओजोन को हमने कर दिया, तो फिर 2 and 4, 1, 2 and 4 should be the option. Now, see, this is a question which eliminates the non-serious aspirants and the serious aspirants. अब ये serious aspirants 100% इसको आंसर करेगा, non-serious aspirant नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। On the face of it, it looks very डिफिकल्ट। एड्रियाटिक सीट तो यार कोई प्रिपेयर करता नहीं है, एड्रियाटिक सी का तो थोड़ा एक्सक्यूज है। ओके, अल्बेनिया का भी एक्सक्यूज है, अल्बेनिया तो कोई जानता नहीं, चलो छोड़ो। These 3 C's are the most important topic of UPSC. Every year there is a question. Every year अगर आपने देखा है कि ज्योग्राफी मैपिंग में either they'll ask मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी और ब्लैक सी, या फिर मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आता है, और रेड सी, सीरिया के बॉर्डर, सीरिया एंड दोस थिंग्स। तो these 3 C's, सीरिया, these are very hot topics. Serious players will definitely attend this question because they have made a lot of mnemonics with it. There is you cannot miss such questions. These are reward for serious players. These are the questions which give you high in the exam. Okay? अगर आपने सही से पढ़ा है, there is a mnemonic for Caspian Sea, by this time everyone knows. Okay? तारीख से करता है। तारीख क्या होता है? तुर्कमेस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजक। सो कजक इज देयर वेरी मच देयर। अब ब्लैक सी का एक निमोनिक बना हुआ है, उससे क्रोएशिया बनता है। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को है। अब ये सीरिया नहीं होता। 5 is not there. Croatia is not there. अब इसमें 1, 3 and 4, this is an option. This question will determine whether you are a serious player or not. Such questions will make you in prelims.
Among the following, which is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? This is absolutely easy question. India. भाई लॉजिकली भी अगर देखो, जब चाइना और इंडिया है तो ये तो काट सकते हो आप। म्यांमार वियतनाम कहाँ से आ गए जब चाइना और इंडिया ऑप्शंस में है? तो म्यांमार वियतनाम का तो कोई सवाल ही नहीं है, कैसे हो सकता है? नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज ऑफ इट्स not everyone remembers these things. बंदरपूंछ, बारासिंगरी, मिलाम, सियाचिन झील, 5 ऑप्शन दिया है और 5 ऐसे है कि मतलब इतना रट्टा तो कोई मार नहीं सकता है। इन इंडिया कार्बोफुरन, मिथाइल पैराथोन, लीव स्ट्रेट अवे, कभी अटेम्प्ट ही नहीं करना है इस क्वेश्चन छोड़। नाउ ये 3 क्वेश्चंस को 3 स्टेटमेंट्स लंबा है, मतलब घबराना नहीं है। Such questions will be easy sometimes. Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government to protect and conserve all the wetlands. Now this is an extreme statement. Okay. This can be okay. All the wetlands तो हो ही नहीं सकता है। Okay. 2 लगभग ठीक है। So framed by the government of India based on recommendations. Okay. Also encompass the drainage area wetlands as determined by the authority. Option is right. Agricultural soils release nitrogen oxides in the environment. Cattle release ammonia into environment. Poultry industry. This is also like a general question. वो sum वाला question देखा था हमने. Some turtles, some fishes are herbivores. उस type का question है. Without any overthinking, you have to answer these questions. Okay. Aliyar, Isapur, Kangas Bhati. Forget even attempting this. कोई कभी आया नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। Now, hydrogen enriched CNG as fuel for buses, ये बहुत डिस्कस्ड टॉपिक था एग्जाम से पहले, ये बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक था, बट इवन लॉजिकली इफ यू सी, लॉजिकली आपको ये तो है, हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, इट मेक्स मोर एक्सपेंसिव, दिस इज गॉन। एंड द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब टोटल एलिमिनेशन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। कोई भी अगर नया फ्यूल आप लेके आ रहे हो, एनरिचमेंट कर रहे हो, उसकी वजह से कोई पोल्यूटेंट ऐसे ही खत्म हो जाता है, तो फिर अब तक इतने सिटीज में इतने पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। दिस इज लॉजिकल स्टेटमेंट्स, सो दिस स्ट्रेट अवे बी। नाउ दिस इज स्ट्रेट एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी आप इसलिए पढ़ना चाहिए, ये दिस इज स्ट्रेट अवे बिकॉज उसमें दे रखा है कि ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म व्हेन देयर इज अ क्लियर स्काई, उसमें दे रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, दे आर आस्किंग यू ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट, सो द लॉजिकल ऑप्शन अगर थोड़ा बहुत सोचेंगे तो ये आ जाएगा, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक टू अर्थ रेडिएशन, ठीक है। नाउ the 44th Amendment Act to the Constitution of India introduced an article placing. Now this is a question, ये 44th and 42nd Amendment आपने बहुत अच्छी तरह से रट्टा मारना है इसका। आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे या देर कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ेंगे या फिर कोई भी सोर्स से पढ़ेंगे, 42nd 44th ये दोनों तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों 42nd को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 44th is also important amendments, okay, so these should not miss। और ये क्या कह रहे हैं, प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th amendment to the constitution has been violated of the independence of judiciary। ये आपको पता होना चाहिए, बट आई वुड से दिस इज 50-50 क्वेश्चन, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो इस क्वेश्चन last, okay, but first is absolutely wrong। No.
अब इतना लंबा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, मगर आप थोड़ा बहुत इसमें लॉजिक पकड़ते हैं. द मोशन ऑफ टू इम्पीच ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी. तो क्या बात हो रही है? कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. स्पीकर हैज लॉट ऑफ पावर्स. जस्ट गो एंड रीड द पावर्स ऑफ स्पीकर इन इलेक्शन. वो कोई भी मोशन, इम्पीचमेंट इज नॉट अ बिग मोशन. इससे बड़ा तो मनी बिल होता है. मनी बिल अफेक्ट्स टोटल पार्ट ऑफ द कंट्री. इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता है. दैट इज वो भी लॉजिकली भी अगर देखेंगे तो मनी बिल इज मच बिगर. जब स्पीकर मनी बिल को डिसाइड कर सकता है तो ये तो बहुत छोटा मोशन हो गया ना. हाउ कैन यू रिजेक्ट? हाउ ही कैन नॉट बी, मतलब ये just go through these things, okay. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior. ये देखिए, defines, give details. incapacity के बारे में ऐसा नहीं होता है. There is no definition of incapacity and proved misbehavior. misbehavior को कोई definition दे पाएगा? आप ये बताओ. कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन दे पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? जस्ट थिंक लॉजिकली. सो 1 and 2 आर एलिमिनेटेड ऑब्वियसली. अब 3 and 4, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. 3 is obviously correct. If the motion for the impeachment is taken up for voting, the law requires the motion to be A. Pure Lakshmikant. Okay. Right. 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. This is a pure factual Lakshmikant question. Jawaharlal Nehru. Okay. Coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. पता नहीं. Coal blocks are allocated on lottery basis. ये तो लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है. 2 cannot be the answer. 2 cannot be. लॉटरी बेसिस में होता है कोल ब्लॉक्स, और ऑक्शन बेसिस में हुआ था, और उसी में इतना बड़ा स्कैम हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ऑक्शनिंग इट प्रॉपरली. कोल ब्लॉक्स अलोकेशन, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आया था. लॉटरी बेसिस में नहीं होता. टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट. लास्ट स्टेटमेंट ये है कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन. इट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट. इसके बारे में पढ़ना चाहिए. फर्स्ट स्टेटमेंट वी डोंट नो एक्चुअली, बट स्टिल वी derive it. Okay. Now, this question, the Parliament Prevention of Disqualification Act exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. पता नहीं यार, इस एक्ट के बारे में तो हम पढ़ते नहीं है इतना. 1959 के एक्ट बात कर रहे हैं, 1 का तो छोड़ो. The above mentioned act was amended 5 times. किसको पता है? एक्ट के बारे में पता नहीं है तो 5 times कैसे पता चला? The term is well defined. Now this is a key point. Well defined, office of profit, well definition. ये well definitions generally होता नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है. 3 is gone, so option A. Easy question. Easy question. Okay. Because see, the first 2 are tough statements, but still we came to the answer. Okay. ऐसे questions छोड़ना नहीं है बिल्कुल. This is also an easy question. Very, very easy question. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private? This is the 5th schedule. Very, very basic questions. Right. PVTGs अगर आपने पढ़ा है तो फिर बढ़िया है, but generally तो पढ़ते नहीं है. This is straight away picked up from Hindu article. I'll share you the source also. हिंदू में एक आर्टिकल आया था, एंड इवन दिस वाज रेज्ड ड्यूरिंग ए पार्लियामेंट क्वेश्चन. अगर आप पार्लियामेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री के हर मिनिस्ट्री के पार्लियामेंट क्वेश्चंस होता है. दिस इज स्ट्रेट अवे ए पार्लियामेंट क्वेश्चन. ट्राइबल मिनिस्ट्री हैज responded to such questions. Okay, straight away it's lifted, and they have said that there are 75 primitive
particularly vulnerable tribal groups. Okay, they said it, but at this point of time I would say this is not a question to attempt. It's not that easy. उस टाइम पे इतना कोई पढ़ता नहीं है इसके बारे में. You can leave this question with grace. Okay, कोई गिल्टी नहीं है. With reference to Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations in article Constitution powers under Article 142. It could mean which one? The decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. Okay. Now see this question. It's talking about Article 142. Article 142 आपको पता हो या नहीं हो, we will come to it later. But see, look at the statements. The decision taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. Any court of law ऐसा कभी होता है? Election disputes तो लड़ते रहते हैं courts में. Supreme Court is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. This is a little bit logical. In the event of grave financial crisis, the President of India can declare financial emergency without counsel. ये तो भाई घोर अन्याय है यार. ऐसे तो यूपीएससी ऑप्शन ऐसे सेट करना नहीं चाहिए. State legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence. ये थोड़ा आपको दिमाग में घुमाएगा, बट दिस इज रॉन्ग. ओवर थिंकिंग नहीं करना है. दिस इज स्ट्रेट ऑप्शन. ओके. With reference to the Legislative Assembly of a state, now again it's a very simple option. लक्ष्मीकांत ने दे रखा है. When a state legislature does not, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बट अगर आपने लक्ष्मीकांत सही से पढ़ लिया, you will definitely, आपको स्पीकर की बात यहाँ पे आ जाता है. स्टेट लेजिस्लेचर अगर रूल नहीं है तो स्पीकर किस लिए बैठा है? स्पीकर भी होता है ना. स्पीकर कैन मेक रूल्स. ही कैन से विच इज गुड और विच इज, मतलब ब्लाइंडली पार्लियामेंट को फॉलो करने से अच्छा स्पीकर भी तो है वहाँ. सो दिस कैन नॉट बी ट्रू. ओके, दिस यू कैन अटेम्प्ट. अब ये वाई दी तो देखो कहाँ से उड़ के आए, स्ट्रेट अवे जस्ट रिजेक्टेड. दिस इज द ट्रैप. एग्जाम में सबसे बड़ा ट्रैप यही है मुझे लगता है, क्योंकि दिस टॉकिंग अबाउट यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. कोई पढ़ा भी नहीं होगा यार इसके बारे में. स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर, इतना, और वो भी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है. नो नो नो, यू विल डेफिनेटली अटेम्प्ट इट रॉन्ग. फॉरगेट इट. अब ये भी इतना आसान नहीं है. ठीक है. As per the recent amendment to the Indian Forest Act, forest dwellers have the right to fell the bamboo. अब हमको पता है कि bamboo is whether it's a tree or a grass. इसके बारे में आर्टिकल्स आया था, बट इट इज़ नॉट, मतलब इतना डीपली कोई जाता नहीं है कि फॉरेस्ट एक्ट पढ़ लो 1947 का एंड सी द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. Leave this. With article, which article of the Constitution, right to marry, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है. अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो ये दोनों तो कोई लॉजिकल बनता नहीं है. अब ये दोनों में डिसाइड करना था. अब राइट टू लाइफ, एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स भी आ रखा है, आपको गो थ्रू होना चाहिए. अभी रिसेंटली भी केजरीवाल नोटिफाइड, the Lieutenant Government has rejected, saying that right to health is under right to life. Right to health is under Article 21. So Article 21 is a very wider article. आपको पता है होना चाहिए, right? So this you can do it. Red नहीं है, green नहीं है, right? Okay. Patent tax की बात कर रहा है. Patent tax, it's not an easy question. Okay. Intellectual properties tribunal board के बारे में बात कर रहे हैं. Plant varieties are not eligible
ये सब अपना इतना आसान नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86, ये जितने भी एक्ट्स पूछते हैं, इट्स नॉट इजी टू इंटरप्रेट, ओनली थिंग इज लॉजिकली हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग लॉजिकली कुछ डिराइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज फैक्ट्स इन्वॉल्व है इसमें। अब ये देखो, state the requirement of public participation in the process of environment protection and the procedure and management which is sought। public participation का इतना होता नहीं है, ठीक है। you can look it in a logical way, ये जनरली होता नहीं है। lay down the standards or emission, हाँ ये हो सकता है, okay। so this is how you mark the एक्ट्स क्वेश्चन। एक्ट, जो भी एक्ट आता है, अब ये देखो, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विच इज करेक्ट, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट इनटू 5 कैटेगरीज। वेस्ट जनरेटर के बारे में आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, दे आर इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे दे रखा है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसा टाइप का, ठीक है। रूल्स आर एप्लीकेबल टू notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only। अभी ओनली कहाँ पे आता है, थोड़ा रिस्क है, ठीक है। The rules provide exact elaborate criteria, this is a logical statement, okay। it is mandatory on the part of waste generator। अब एक डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट जनरेट किया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल देते, बकवास ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन इज As per the industrial employment standing order central amendment rules। अब ये तो कोई पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई पढ़ता है ऐसे। Nobody would have read this, but options are very very easy, logically आप common sense लगा के देखो। If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms to lay off workers। Definitely यार, fixed term employment अगर होता है तो कंपनीज को इजी तो हो जाता है। वेदर एन एक्ट शुड से अबाउट दीस थिंग्स। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्पररी वर्क बैन, ये भी है, okay। अभी सी दिस क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट ओनली इफ यू सी एन एक्ट इन इट। ये रूल्स दिया था, बट ऑप्शंस ये दोनों जो है, you know, this is how these questions will help you in gaining the cutoff, okay। थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगा दिया होगा तो फिर ये निकल जाता है, थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, ठीक है। सर्विस एरिया अप्रोच इम्प्लीमेंटेड अंडर परव्यू ऑफ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है, लीड बैंक स्कीम के बारे में आया था, सर्विस एरिया अप्रोच उसमें है, ये स्ट्रेट इकोनॉमी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। सैंड इज अ माइनर मिनरल का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें बी टॉक्स अबाउट रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनिंग मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। सैंड माइनिंग के बारे में स्टेट्स में बहुत सारे झगड़ा होता है, सो यू कैन एलिमिनेट दिस, स्ट्रेट अवे ऑप्शन इज सॉरी A, okay। Now see, this is a very very easy question। most of, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है, most of India's external debt is owed by government entities, no one। all of India's external debt is denominated in US dollars, no। just go through the economy, basic economics, यानी कोई भी पढ़ लो यार, श्रीराम भी अच्छा है, मोडाल भी अच्छा है, मोडाल इज लिटिल बिट बेटर, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा इसको आंसर करने में, बट अगर दिमाग लगाओगे डिपॉजिट्स निकल के आएगा। डिपॉजिट्स इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लायबिलिटी, ओके। डिपॉजिट जो भी कर रहा है तो उसको निकालना ही पड़ेगा ना, एक नहीं। In the context of India, which of the following factors
contributors to reducing the risk of a currency crisis. See, I think this paper, economic questions are easy, history questions are very tough. थोड़ा स्टार्टिंग में हमने हर्डल्स देखा है, अब थोड़ा स्मूथली जा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसमें बेसिकली ये पूछ रहे हैं करेंसी क्राइसिस, reduce the risk of currency crisis. Mainly they are asking about the rupee depreciation or appreciation, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो foreign currency earnings of Indian IT sector definitely it will help in reducing the risk. Remittances for Indians abroad definitely it will help. Increasing government expenditure, this is not relevant in this question. Okay, दो को हटा दो, it's not related to this. This is a straight away Lakshmikant question, Sarkariya Commission. You can't get easier questions than this. अगर आप ये attempt नहीं कर रहे तो फिर you are not preparing anything. Okay? Straight away question, Sarkariya Commission. Which of the following is issued by registered foreign portfolio? This is also easy question. Participatory note, promissory note क्या होता है यार, ये तो बकवास, ठीक है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कुछ नहीं, पार्टिसिपेटरी नोट एग्जाम्स, ठीक है। एज पर द लॉ द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, ओनली नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, ये तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन दिस इज एन इजी क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है, ये इजी है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पेंसेटरी फंड के बारे में बात किया तो ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ थॉट प्रोसेस क्वेश्चन। आप ये बताओ कि दे आर स्पीकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, ठीक है, इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी पकड़ लो, दे आर गिवन टेलीकम्युनिकेशन में रेगुलेटर्स का रिव्यू कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? आप पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ो। मेनली डील्स विद द सेंटर स्टेट टैक्स रेशियोज, राइट। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसके बारे में तो छोड़ो, नीति आयोग करता है, नीति आयोग नहीं करता है, फाइनेंस कमीशन नहीं करता है। 3 गॉन 5 गॉन, ठीक है, अब बचा क्या? इंडिया 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन जनरली वी वोंट एक्सपेक्ट, ओके, बट आपने अगर पढ़ा है तो then attempt this, I would say this can be a calculated risk ले सकते हैं इसमें, क्योंकि रेड में नहीं डाल रहे। this can be this looks a perfectly correct statement। सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज पे हुआ था। फोर्थ 5 ईयर प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increasing concentration। ये जनरल स्टेटमेंट, ये करेक्ट हो सकता है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज, ये गलत है वैसे, बट चलो ये एक 50-50 क्वेश्चन, 1 and 2 यू आर स्ट्रक बिटवीन ए एंड डी, ठीक है, राइट। AIIB, दिस इज सीरियसली सिली क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी मजाक करता है ऐसे, ये कह रहा है कि हैज मोर देन 80 मेंबर्स, ये आपको पता नहीं है, छोड़ो। बात हो रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर। भाई चाइना कहा गया है, जापान कहा गया है, ठीक है, और अदर कंट्रीज भी होता है। 80 मेंबर्स अगर है तो एशिया में 80 कंट्रीज है क्या, ये बताओ। डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ब्लंडर, ठीक है, स्ट्रेट ये क्वेश्चन। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, अब ये देखो, ये खुद स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस इज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, बकवास है। सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी बकवास है। अब ये दोनों में आपको डिसाइड करना है टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स ऑफ 50 crore और मोर। अब ये थोड़ा टेम्पटिंग लगता है। द एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ 50 crore और मोर। अब ये बात आया स्ट्रेस्ड एसेट्स पे, अब
कोई भी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कोई दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो रहा है तो इट शुड बी रिलेटेड टू दिस. लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, राइट. द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन पुट अप बाय यूपीएससी आई वुड से, क्योंकि ये कोई बुक्स में नहीं होता है. ये दिस इज ए कॉमन सेंस क्वेश्चन. चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय, जस्ट इमेजिन एसबीआई इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक. एसबीआई का चेयरमैन को आरबीआई का कोई लेना देना है उसमें? आरबीआई नहीं करता है. फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है? नो. मोस्टली पीपल would have struck between this and this. If you are a serious aspirant, you would have struck between these two. अब ये भी हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक या फिर बैंक बोर्ड्स ब्यूरो. दिस आई वुड से इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क. देयर इज अ कैलकुलेटेड रिस्क इन दिस. ठीक है, लास्ट में आ जाता है यू आर स्ट्रक 50-50. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अब ये तो पता नहीं यार, ये तो पता नहीं, छोड़ो. आई वुड से दिस यू कैन स्किप, यू हैव टू स्किप दिस, राइट. एलटीए एंड वॉइस ओवर एलटीए, ठीक है. आपको एलटीए के बारे में पता नहीं, वॉइस ओवर एलटीए के बारे में तो पता है. वाइप बोलते थे, वॉइस ओवर आईपी आते थे. ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर बुक नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ. इट्स एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी. वॉइप आते थे, वॉइप डिवाइसेस आते थे, ठीक है. वॉइस ओवर आईपी, दिस इज रिलेटेड टू दैट. वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. तो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज कॉमनली मार्केटेड. एडवांस्ड 3G नहीं है, ये 4G के अंडर आता है ये. एंड VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें डाटा भी आता है. तो you can straight away, I would say this is option is D. मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, फिर से एक्ट आ गया. अब आपका सर घूमना नहीं चाहिए, छोड़ो इसको. इतना सारे क्वेश्चंस किया है, फिर ये यॉर्कर दे दिया. अब ऐसे टफनेस ऑफ द एग्जाम, ये जनरली वी कांट एक्सपेक्ट. ओके, छोड़ो. अब ये थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क और या फिर लॉजिकली आप लगा सकते हो. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस के लिए ईज कैसे होगा? एक तो कंस्ट्रक्शन परमिट्स सही होना चाहिए, टैक्सेस का सही होना चाहिए, प्रॉपर्टी का भी सही होना चाहिए. तो बचा क्या? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. दिस मे नॉट बी, सो ऑप्शन इज दिस. ओके, ये इतना आसान नहीं है एग्जाम कंडीशंस में, और वो भी 75 क्वेश्चंस आपने कर दिया तो इतना कॉमन सेंस काम नहीं करता है. बट यू हैव टू मेंटेन दैट, दैट्स हाउ यू क्लियर फिल्म्स. अदरवाइज तो भूल जाओ यार फिल्म्स को. आई एम जस्ट जोकिंग. ओके, दीज थिंग्स शुड वर्क, क्योंकि 100 क्वेश्चंस ऐसा है, उसमें कितने यॉर्कर है, कितने मतलब गूगली है, कितने स्ट्रेट क्वेश्चन है, यू नेवर नो अनलेस एंड अनटिल यू थिंक डीपली. अब ये देखो 76 क्वेश्चन इज अ वेरी टफ क्वेश्चन. इसमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा आपको. यू हैव टू नो अबाउट दैट एक्ट. अब उस एक्ट के बारे में से तो ये बेटर है. ठीक है, फाइन. नाउ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट करंट अफेयर्स में ये बहुत बार आया था. ठीक है, दिस इज ई वेस्ट मैनेजमेंट. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है प्लास्टिक या ई वेस्ट में. बायोमेडिकल छोड़ो, कोई ऐसा नहीं है. ठीक है, फूड सेफ्टी ये तो इररिलेवेंट है. तो आपको कंफ्यूजन अगर प्लास्टिक और ई वेस्ट में आता है, देन यू हैव टू रिवाइज अ लॉट. रिवाइज. द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये क्वेश्चन जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यू शुड नो अबाउट द MSP. ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेंट्रल इश्यू प्राइस, बहुत थरोली पढ़ाई करना है इसके बारे में. ठीक है, एंड दिस इज मोर और लेस यू नो. प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप कर सकते हैं, ये इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन. सोशल कैपिटल, हाँ ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट वी कैन कीप इट इन अ 50-50 कैटेगरी, बिकॉज
the proportion of literates in the population, the stock of its buildings. अब ये social capital में आता है, buildings का, size of population in the working age group, हाँ ये logical है, level of mutual trust and harmony in the society, ये logical है, proportion of literates. अब एग्जाम में बैठेंगे तो ये भी लॉजिकल लगेगा आपको, बट दिस इज नॉट. और आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आई थिंक देयर इज व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन सडनली एक हिंदू का आर्टिकल में स्ट्राइक हुआ था, इसमें एक वाइस प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ था, उसमें वो बताया था दिस इज नॉट अ करंट अफेयर, दिस इज नॉट, you have to understand newspapers in this, so you can put it in these two. Okay, चलो आते हैं, बाद में आते हैं. With reference to constitution, this is a very easy question. Okay, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. गलत. An amendment cannot be called into question. ये भी गलत. This is a simple question. Polity. Okay. Purchasing power parity के बारे में देखा था. India is the 6th largest, नहीं. India is the 3rd largest. ठीक है. Option is A. This is an easy question of economy. अब ये देखो, इस क्वेश्चन में area under rice cultivation is highest. This is true. एरिया अंडर द कल्टिवेशन, अब ये पता नहीं, जवार ऑयल सीड्स का पता नहीं, अब कॉटन शुगर कैन का भी पता नहीं. अब ये देखो, एरिया अंडर शुगर कैन कल्टिवेशन स्टडीली डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, शुगर कैन तो बढ़ रहा है, क्रॉप इज ग्रोइंग, तो 4 गया ये. नाउ दिस इज अ लिटिल बिट 50-50 क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि वैल्यू हाईएस्ट इन इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फ्रेश फ्रूट्स तो इतना होता नहीं है, आपको सीधा पता होना चाहिए, और स्पाइसेस इतना हम इंपोर्ट नहीं करते हैं. पीपल हु हैव रेड इकोनॉमी दे विल बी स्टक विद दीज 2 ऑप्शंस, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. इसमें एक आर्टिकल आया था तो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट. अब ये भी लिबर्टी के बारे में पूछ रहा है. ओके, सीरियस कैंडिडेट्स के लिए अब ये तो बकवास लगता है. अपॉर्चुनिटी टू वॉट एवर वन लाइक्स, ये भी बकवास है. ये दोनों में आपको डिसाइड करना होता है. एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, बट लॉजिकली स्पीकिंग दिस शुड बी एन आंसर. अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली. तो आई वुड से दिस इज नॉट अ 50-50, लिटिल बिट रिस्क इज देयर इन दिस, बट यू कैन गो फॉर इट. Which one of the following is not the most likely measure the government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee? ठीक है, अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा है, you will mark this without any fail. RBI recent directives relating to storage of payment system data. Now this is not an easy question. आपने अगर पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, you will mark this, otherwise it becomes difficult. Don't mark if you are not read. ठीक है, 88 में आ गया जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन in April 2016 and started implementation of it from. अब देखो ये पूछ रहा है 25 मई 2018 के बारे में. अगर आपने पढ़ा है तो मार्क कर सकते हो, बट स्टिल I don't think this is a common question. This is not a common question. Action plan for prioritization and implementation of cooperation areas in the nuclear field. अब ये न्यूक्लियर फील्ड का क्वेश्चन जो है थोड़ा पड़ा सा है ये. ठीक है, यू कैन टेक अ रिस्क इन दिस. आइदर इट कैन बी रशिया न्यूक्लियर डील के बारे में, ठीक है, और यूएस का तो है नहीं. तो मोस्ट लाइकली यू कैन टेक अ वाइल्ड गेस हियर. अब वाइल्ड गेस लेंगे, रिस्क लेंगे, इट्स अप टू यू. ठीक है, ये कोई 50-50 में नहीं आता है. ठीक है,
money multiplier in an economy increases. This is a basic question. This is general basic economy का बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है. Increase in the banking habit of the population. ठीक है. अब ये augmented reality भूल जाओ यार, इसको ऐसे क्वेश्चंस को better don't touch. You're not a science expert in this. ये 4 स्टेटमेंट दिया है, एक नहीं 4. डेनिस ओवन आपने पढ़ा है तो फिर डेनिस ओवन देखो, डायनासोर्स भी दिया है, हंसी आता है कभी कभी, ठीक है, पैसे खेलता है इमोशंस के साथ, बट बेटर लीव इट, यू नो, दिस इज नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग. With reference to recent developments in science, which one of the following statements is not correct? Functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells. This is absolutely not correct. थोड़ा साइंस एंड टेक का बेसिक सही है, ठीक है, तो you can mark this if you have gone through basics. Digital signature is a very easy question. Okay, सबको पता है ये 1 2 3. There is no thought about it. Electronic recorder identifies, इसमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है. Wearable technology, this is also a very easy question. आप अगर वेयर कर रहे हो को आई वॉच, आईफोन का एप्पल का जो वॉच आता है उसमें लोकेशन आइडेंटिफाई होता है, स्लीप मॉनिटरिंग भी कर सकता है, हियरिंग इम्पेयर्ड को भी असिस्ट कर सकता है. बेसिक क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. अब ये आरएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, यू कैन लीव इट, ओके. अब ये ब्लैक होल्स के बारे में यू हैव रेड मेनी टाइम्स, ओके. ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुआ है, दिस इज अ वेरी बिग डिस्कवरी. एंड वार्म होल के बारे में कंफर्मेशन हुआ है भाई, मूवीज में हुआ है, हॉलीवुड मूवीज में, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी फेमस थिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था, इट्स अ वेरी फेमस थिंग. multi drug resistance in microbial pathogens, you can take a calculated risk, ठीक है. आप calculated risk आप कैसे लेंगे आप खुद जानिए, बट this is difficult I would say. This is not a calculated risk, I would say this is difficult. इतना आसान नहीं है ये, ठीक है. पढ़ते हैं बट इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके. Cas9 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार न्यूज़ में आया था. ये मॉलिक्यूलर सीजर्स है, ठीक है, बहुत बार पढ़े हैं, बहुत सारे मटेरियल्स में आया था ये, ठीक है. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब ये हेपेटाइटिस का भी बहुत बार आया था, बट हेपेटाइटिस का बेसिक ये है कि विच वन इज नॉट करेक्ट. हेपेटाइटिस के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा था, तो जस्ट सी नॉट करेक्ट श्योरली हम देखेंगे. हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV. यस. ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड. यस, बहुत लाखों लोगों को हो चुका है ये. Some of those infected with hepatitis do not show symptoms. ये भी true है. बचा क्या है ये है. Hepatitis B have a vaccine. Okay? इसमें दिया है कि does not have a vaccine. कुल मिला के, you know, this is how it boils down to. ठीक है. 100 क्वेश्चन हमने देखा है, आप देखते हैं क्या हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. यस. अब हमने क्या छोड़ा था 50-50 का, या फिर देखते हैं क्या क्या छोड़ा था. रेड वाला तो भूल जाओ, ग्रीन वाला तो हमने कर दिया. 50-50 के लिए छोड़ा था. अब ये देखो ये क्या है. रिसेंटली इंडिया साइंड ए डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन. ये थोड़ा हाई रिस्क क्वेश्चन है, बट आप कर सकते हो, थोड़ा पड़ा हुआ है, ये रिस्क ले सकते हो. रशिया, ठीक है, पड़ा हुआ करंट अफेयर से है, ठीक है. अब ये पता नहीं, छोड़ो. अब इसमें एक कैलकुलेटेड रिस्क वैल्यू की बात जब चल रहा है, पल्सेस से
मोर वैल्यूएबल वेजिटेबल ऑयल्स है, ठीक है। ऑयल का प्राइस ज़्यादा है ना पल्स से, तो हम एक मार सकते हैं, बट सी दिस इज ऑलवेज a 50-50 chances are there, okay, that's why I'm अब इसको करना ही है यार, ये without these 50-50 you can't clear, I'm sure about it, ठीक है। कोई जेम्स बॉन्ड नहीं होता है, 50-50 तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें लॉजिकली ये लगता है कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट, यस दिस इज ए परफेक्ट स्टेटमेंट, राइट। एंड अब क्या 50-50 के लिए छोड़ा, यस। अब ये इसमें, अब ये देखो, ये भी है, ये भी है, क्या मार्क करेंगे, ऑफ के ऊपर है, ठीक है। एंड सी what else? अब ये भी छोड़ दिया था, either it can be two only or none. You have to mark it, you have to go for it, ante, that's all, right। 50-50 कहाँ पे है, और अब हाँ यस, इसमें थोड़ा वाइल्ड गेस ये ले सकते हैं कि अगस्तमला जो है केरला के साउथ में होता है, साउथ में है, एंड वयनाड इज इन द नॉर्थ पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा बट यही है कि उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे ये सब से सोचना थोड़ा मुश्किल है। वयनाड तो आप जानते ही है, जहाँ से हमारे राहुल जी ने कंटेस्ट किया है, ठीक है। सत्यमंगलम, मुदुमलाई, these are in the northern part of the Kerala, these are in the southern part of Kerala। अगर थोड़ा बहुत अगर लॉजिक लगा है, शंदुरनी, ये पेपारा तो सुना ही नहीं है यार, ये नाम नहीं यार, पता नहीं। शंदुरनी तो फेमस है, कालक्काड़, मुदनतुरई ये भी तो पता नहीं, कालक्काड़ तो थोड़ा बहुत सुना है, ठीक है। अब ये देखो 25th का कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इट्स ग्लोबल वार्मिंग, आंसर भी यही है, ठीक है। दिस इज कैलकुलेटेड रिस्क, हमने आया था। एंड या एक वाइल्ड गेस तो करना ही पड़ेगा 50-50 में। एग्जाम के कंडीशंस में यू कैन नेवर एवर, अब इसका भी हमने डिराइव किया था, आइदर इट कैन बी वन और नन, यू हैव टू गो विथ इट। या हमने ये भी बोला था कि निम्बार्का जो है 13th सेंचुरी का सेंट है, तो इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स, लास्ट मिनट में कभी कभी आ जाता है, याददाश्त वापस आ जाता है। अब ये वार काउंसिल का भी थोड़ा, ज़्यादातर इसमें 1, 2, 3 में जाता है, बट यस 1, 2, 3 में जाता है लोग इसको गेस करने में। अब इसका देखो, ज़्यादातर मुझे ये पता है चालुक्यास ने बहुत कंस्ट्रक्शंस किया है, कल्याण मंडपास, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में चालुक्यास आर वेरी प्राइम। जो विरूपाक्षा टेम्पल है, हमने पढ़ा है विरूपाक्षा टेम्पल। चंदेला तो चलो सेंट्रल इंडिया का स्ट्राइक आउट हो गया। राष्ट्रकूटास आर फेमस फॉर दी रॉक आर्किटेक्चर, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर, बट मोस्टली द विजयनगर पीरियड इज वेरी वेरी फेमस फॉर आर्किटेक्चर। अब यही हो सकता है लॉजिकली हम जाएंगे तो, ठीक है। राष्ट्रकूटा इज नॉट एन ऑप्शन, either it can be Chalukya or Vijayanagar, ठीक है। राष्ट्रकूटा फेमस थिंग इज एलोरा रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर्स में ये लोग फेमस है।
Chalukya, they have built a lot of architecture, but it is asking about Kalyana Mandapas. So this you can take it. Forced labor छोड़ो, अब ये भी कैलकुलेटेड रिस्क 50-50, अब ये भी 2-3 1-2-3 ज़्यादातर ऑल में ही जाते हैं, ठीक है। अब ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ओके, हुआ है, एंड land reforms, yeah, first one, yeah, if you go through this thing, this will also will be wrong, okay, option is D, yes. So friends, हमने देखा था कि 100 क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किया था, एंड a small analysis about what we have done, मतलब factually more or less we have done about 78 questions हमने attempt किया था, 78, 2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउटफुल जितने भी है उसको भी मान के 80 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किया था। 80 क्वेश्चंस में से दिस 14 क्वेश्चंस आर लाइक 50-50 हमने जो देखा था। 66 क्वेश्चंस ज़्यादातर हमने जो मार्क किया, वी आर श्योर अबाउट इट, लॉजिकली हमने जो कंक्लूड किया था, एंड दीज आर द डेंजर क्वेश्चंस दैट वी हैव लेफ्ट कंप्लीटली। 20 क्वेश्चंस हमने टच नहीं किया था। सो विद दिस एनालिसिस, दिस इज मतलब प्रॉपर प्रीलिम्स में एवरेज टू अबोव एवरेज और एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, दे विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ फिगर्स, ओके। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम 150 140 पे चले गए, 150 पे चले गए, ऐसा स्कोर्स तो जनरली आता नहीं है, इट्स एक्सेप्शनल, आई हैव नेवर सीन सच पीपल, ठीक है। अगर कोई आता है तो फिर वो दैट इज अ डेफिनेटली एक्सेप्शनल केसेस, बट नॉर्मल केसेस में these are the figures which generally people go through। अगर इसमें से 132 अगर आपने रिस्क लिया है तो कि 66 into 132, if your day is really bad, अगर आपका किस्मत सही से बहुत ही ख़राब है, ये 14 क्वेश्चंस के 14 क्वेश्चन गलत भी चले गए तो भी कितना नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट थिंक। एंड 14 into 0.66, राइट, ठीक है, 14 into 0.66, दैट वुड बी इवन 10 मार्क्स भी अगर निकालेंगे तो 122 इज़ अ वेरी सेफ स्कोर। अगर बाय चांस इसमें से एग्ज़ाम कंडीशंस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी गलत मार्क कर देते हैं, एग्ज़ाम क्वेश्चन सही पढ़ते हैं बट आंसर गलत लगा के आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस होता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है ये, ठीक है। एग्ज़ाम का प्रेशर इसी को बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल ये, और ये होता है हर स्टूडेंट के साथ होता है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन फॉर दिस, हाईली अनलाइकली, ठीक है। तो फिर 122 में से भी अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर निकालेंगे तो आई थिंक 110 to 115 इज मैनेजेबल इन दिस पेपर। ऐसे करेंगे तो you will definitely clear prelims। थोड़ा बहुत होप होना चाहिए, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत प्रिपरेशन पे this is an attempt to say that how prelims paper can be attempted। थोड़ा बहुत अगर गलतियाँ हुआ तो फिर just tell me in the comment section, and in the further videos we'll just bring about how your preparation can be bettered, how your preparation can further intensify for the coming prelims। and I tell you एक छोटी सी बात है, 1 मिनट का, आप सुन लीजिए ये बात जो है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आते हैं, जो बहुत ही मतलब सिटी काइंड ऑफ प्रिपरेशन जो करते हैं, they take prelims very lightly, and people also, the senior players also, nobody will tell you
बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे प्रीलिम्स तो हो जाएगा यार, तुम सीरियसली पढ़ोगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है. एनीबडी विल गिव यू दिस, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट दे विल टेल यू दिस, बट यू नो दे डोंट टेल यू दीज थिंग्स लाइक यू नो प्रीलिम्स इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम. प्रीलिम्स जब क्लियर करेंगे ना तो तभी तो आप मेंस देखेंगे, तभी तो आप इंटरव्यू देखेंगे. अब प्रीलिम्स ही नहीं करेंगे तो बाकी क्या होगा. एंड माइंड माय वर्ड्स, many people come to Delhi and they spend 4 to 5 attempts without clearing prelims and they'll go back. These are the facts which people don't tell you. You know, no coaching center will tell you. क्यों बोलेंगे, वो तो यही बोलेंगे प्रीलिम्स हो जाएगा भाई, आ जाओ ज्वाइन कर लो और भरो, पैसे भरो, प्रीलिम्स तो हम निकलवा देंगे. प्रीलिम्स ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है. And with experience, with much experience, these facts are derived. Okay, just respect. If you want to respect, it's up to you, you know. But these are the true facts which I'm saying. Many people keep years of preparation in clearing the civil services exam totally. अगर किसका first attempt में हो रहा है, don't underestimate them, ठीक है. They might have started preparation much early. You don't even expect. You don't even know how early they have started preparing. ठीक है, तो don't see that किसी का हो गया, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, किसी का थर्ड अटेम्प्ट में हो गया, यार मेरा तो प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है. You know, there are lot of factors in this. There is a little bit luck also in this. सब कुछ होता है, ठीक है, जिंदगी में लक भी थोड़ा साथ देना होता है, but luck comes only with your hard work. You know, you put your efforts, you will get the result. That's all. Okay, चलो फिर बाय. एंड विल फर्दर कम विथ दी वीडियोस, एक रिवीजन वीडियोस का सीरीज बनाएंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली. एंड देन विल थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड इन मेंस एंड विच कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो आएंगे वेरी सून, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.